Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today, we'll also be taking calls from you, our listeners, and any queries that you may have on business, economic, and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 2371 7106, or 2371 7117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आज शनिवार है और आज के दिन हमारे कार्यक्रम में आप भी हुआ करते हैं आमंत्रित और पूछ सकते हैं हमसे अर्थनीति, कारोबार या शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल। बस ये ख्याल रखिएगा कि हम किसी खास कंपनी या शेयर के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। हमसे संपर्क करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 2331-4444, 2371-7106 या फिर 2371-7117। हमारे साथ खबरों पर चर्चा और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के देश के जाने माने विश्लेषक शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम शरद। नमस्कार मनोज, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को दिल से अभिनंदन। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks fall more than 0.5% during the week ended yesterday. Sensex closes above 52,600, Nifty finishes below 15,800 level. And the US stocks slip amid concern about lower than expected results of leading companies. कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में घरेलू शेयर बाजार 0.5% से अधिक गिरावट के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 52,600 और निफ्टी 15,800 के स्तर से नीचे आया और प्रमुख कंपनियों के परिणाम उम्मीद से कमजोर रहने पर अमेरिकी शेयर बाजार में हुई गिरावट। कल समाप्त कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों नुकसान के साथ बंद हुए। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले कमजोरी के रुख और घरेलू शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव के बीच हुए कारोबार के अंत में प्रमुख सूचकांक 0.5% से अधिक घाटे में रहे। सेंसेक्स 52,600 और निफ्टी 15,800 के स्तर से नीचे आ गया। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों में निवेशकों का रुझान अच्छा खासा दिखा। दुनिया में कोविड-19 के डेल्टा स्वरूप के तेज प्रसार की आशंका तथा चीन में नियामक द्वारा कार्रवाई किए जाने का निवेशकों पर प्रभाव अनुकूल नहीं रहा। दुनिया के प्रमुख शेयर बाजारों में मुनाफा वसूली देखी। इस सप्ताह सेंसेक्स 379 अंक यानी 0.73% घटकर 52,587 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 93 अंक यानी 0.59% कम होकर 15,763 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार में निवेशकों ने लिवाली की। साप्ताहिक आधार पर बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.29% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.36% की वृद्धि हुई। We have our first caller on line with us, Hasmukh Dedia from Mumbai. Hasmukh ji, we welcome you to Market Mantra. Yeah, good evening Market Mantra team. Ji. Sir, my question is the metal sector. We have seen the rally and the prices of metals are like on fire. So what will be the negative impact of these high prices of metal on our economy and stock market for next 6 months? Thank you. Well, Mr.
A very valid question. Well, something that benefits one sector can obviously harm the other sector, as you are rightly envisaging. Well, I think the cost of inputs of wherever the metals are used, for example, automobiles. I think the most glaring example of metal usage is automobiles, where the cars or whatever, they are built out of metal. So I think the cost of input for this sector, automobile sector, is going to go up, which means that their bottom lines are going to be affected. So obviously, once a particular sector goes up, then we have lead, we've got copper, we've got steel, we've got other silver, we've got precious metals also. So whenever the prices go up, wherever they are used as raw materials, I mean, I can give you an example. Even in mobile phones, there is a lot of precious metal, there's a lot of silver used. I mean, there can be so many examples of where metals are used. So wherever you are, you can feel and touch metal. I think the cost of that particular product is going to go up, and the bottom lines will be affected. We've already seen a lot of automobile companies, they have raised their car prices and other things, and that is a consequence of the metal sector being on fire. As you said, I'm quoting your own words. It does have a negative effect, but then over a period of time, I feel that no prices can just keep rising. They have to stabilize at some point, because there is only as much the economy, the sectors, the industry can take. So hopefully we should see things cooling down in the months to come. But then whatever has happened, whatever the prices have risen, I think the cost of inputs have already gone up. I hope I've answered your question, Hasmukh. Thank you. दिल्ली से अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे संजय गुप्ता जी को। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। सवाल पूछिए। मेरा प्रश्न है कि इस समय इकोनॉमी हर तरफ से सेटबैक में है, डाउनफॉल आ रहा है, पेंडेमिक है, वर्ल्ड वॉर का जबरदस्त खतरा है। ऐसे में सेंसेक्स कैसे ऊपर जा रहा है, मतलब इतना बारिश कैसे कर रहा है? देखिए, बहुत वाजिब प्रश्न है। बहुत लोगों के मन में ये आता है कि ये शेयर मार्केट ऐसी क्या बला है, जब चारों तरफ थोड़ा सा अच्छा माहौल नहीं होता तब भी शेयर मार्केट। और हमने देखा निरंतर पिछले मार्च से, अगर हम देखें 23 मार्च, मुझे याद है वो दिन 2020 का, जब धड़ाधड़ करके नीचे गिरी थी, और उसके बाद से इसने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। छोटी मोटी करेक्शंस बीच में आती रही, पर निरंतर बढ़ती रही है। 7,500 से बढ़ के इस समय हम 16,000 के आसपास बार बार छूने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक तो लिक्विडिटी उसका कारण है, क्योंकि पूरे विश्व में जो लिक्विडिटी आई, जिस प्रकार से नोट छापे गए इकोनॉमीज में, जिस वेरियस इकोनॉमीज ने, अलग अलग देशों ने जो है वो जम के लिक्विडिटी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फेंकी, बहुत सारा पैसा वो आया। और हमने देखा कि जब कोरोना बीच में शांत भी हो गया था, पिछले साल हम देखें तो ये तो सेकेंड वेव अब जो चली, अब तो सेकेंड वेव भी शांत हो गई है, तो उसके बाद इकोनॉमी एकदम बाउंस बैक भी करती है। तो हमने देखा बहुत सारी कंपनियों के नतीजे बहुत अच्छे आए, और एकदम से पेंट अप डिमांड जिसको कहते हैं, उसकी वजह से नतीजे अच्छे आए। तो इन सब कारणों से मार्केट बहुत जल्दी बाउंस बैक करती है। और एक मैं आपको और कारण बताना चाहूंगा जो कि बहुत अनयूजुअल है। 1,42,00,000 निवेशक नए पिछले वित्तीय वर्ष में नए लोग जुड़े। ये वो लोग थे जिनकी नौकरी चली गई थी, ये वो लोग थे जिन्होंने अपना काम धंधा जो वो करते थे वो छोड़ के शेयर मार्केट में अपना बिजनेस करना, निवेश, ट्रेडिंग, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बड़े तरीके से शुरू किया। चाहे उनको आता था या नहीं आता था, किसी से पूछ के किया या अपनी जानकारी रिसर्च के माध्यम से किया, तो उनके जुड़ने, जब इतने सारे निवेशक जुड़ जाएंगे तो बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। थोड़ा थोड़ा पैसा भी आया तो वो एकदम से बढ़ गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हमारे म्यूचुअल फंड थे, उन्होंने भी पैसा लगाया जो म्यूचुअल फंड में पैसा था। तो कुल मिला के मार्केट ने बाकी की इकोनॉमी से उल्टा बिहेवियर किया, वो लिक्विडिटी के कारण, नए निवेशक जुड़ने के कारण, और जब पेंट अप डिमांड कुछ कंपनीज में आई उसके कारण, बहुत सारे कारण हैं। तो पर गुप्ता जी, मैं आपको एक प्रार्थना जरूर करूंगा। आपने एक ऐसा खाका खींच दिया, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, सब तरफ नेगेटिव माहौल है, इतना बुरा भी माहौल नहीं है। आपको मैं ये भी सलाह दूंगा, थोड़ी आशावादी दृष्टि रखें, और हम सब ये प्रार्थना कर रहे हैं कि माहौल सुधरे, इससे भी अच्छा हो जाए। From Kanpur, we are joined in by Saket Soni. Saket, we welcome you. हाँ जी, आदरणीय कोहली सर और पूरी मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। मेरा सवाल ये है सर कि क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में वर्तमान नियम कुछ उसमें बाधा बन रहे हैं? और दूसरा सवाल ये है कि सर
जो शेयर के किसी भी कंपनी के शेयर के प्राइस होते हैं, हमने कुछ कंपनियों को देखा कई हजारों रुपए में है, किसी के कंपनी के कुछ रुपए में है। तो इसका क्या कुछ लिमिटेशन है कि इससे ऊपर जा नहीं सकते या इससे कम हो नहीं सकते? थैंक यू सर। बहुत अच्छे सवाल पूछे साकेत जी आपने। करते हैं कानपुर के हालात बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, खूब बारिश हो रही है हमें पता लगा। देखिए सरकारी एम्प्लॉय के लिए जो नियम होता है, एक थंब रूल होता है कि आप कोई भी जिस समय आप एम्प्लॉयमेंट में है आप साथ साथ कोई बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो F&O पे आपको इसलिए सुनने में आता है क्योंकि F&O का जब कोई काम करता है और उससे जो आय होती है वो बिजनेस इनकम गिनी जाती है। और वैसे भी मैं मानता हूं साकेत जी, आप मेरे से अगर ये तो रही नियमों की बात, पर मेरे आप दिल से पूछे तो सरकारी एम्प्लॉय एक बहुत सधे हुए एम्प्लॉय होते हैं। उनको पता है हमने कितना कमाना है, उनको ये भी पता है हमने रिटायरमेंट पे हमारे पास कितना होगा, पहले से सब कैलकुलेशन सेट होती है। तो वो बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है और बहुत फिक्स्ड एक इनकम, एक कांस्टेंट इनकम मैं उसको मानता हूं। मुझे लगता है कि जो कांस्टेंट इनकम है, बहुत सदी हुई इनकम है, बहुत सोच समझ के लिया हुआ निर्णय होता है सरकारी नौकरी में जाना। मुझे लगता है उस पैसे को वैसे भी उसको F&O बहुत एक रिस्की प्रोपोजिशन होता है साकेत जी। कुछ भी हो सकता है कभी भी, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, वायदा बाजार हम उसको कहते हैं और स्पेकुलेशन भी हम उसको कहते हैं। तो उस पैसे को वहां वैसे लगाना भी ज्यादा नहीं चाहिए और वैसे भी F&O बिजनेस होता है। आपका पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल आपने पूछा शेयर प्राइसेस। ऐसे ऐसे शेयर्स हैं, हम यहाँ नाम नहीं लेते हैं, शेयर जिनके प्राइस 70-70, 80-80 हजार है एक शेयर का। किसी का 15,000, 20,000 है, किसी का शेयर जो है वो 10 रुपए के आसपास घूमता रहता है। तो ये कंपनी जब शेयर इशू करती है तो उसकी जो शेयर्स की वैल्यूएशन होती है और जो नंबर ऑफ शेयर्स वो इशू करती है उसके आधार पर वैल्यूएशन होता है। कभी कभी क्या कंपनीज क्या करती है कि उनका शेयर जब बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ जाती है तो वो उसको छोटे छोटे, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, उसको वो 1-1 रुपए का कर देती है, जिससे कि क्योंकि इतनी बड़ी जब वैल्यू हो जाती है तो लोगों को ट्रेड करने में दिक्कत होती है, आम निवेशकों की पहुंच से वो बाहर हो जाता है। हालांकि आप कम भी ले सकते हैं पर फिर भी बाहर हो जाता है। तो छोटे निवेशकों को जोड़ने के लिए वो शेयर को सेगमेंटाइज हम बोलते हैं, उसको सेगमेंटाइज कर देती है। मतलब 10 रुपए के शेयर को 1-1 रुपए का कर दिया। मान लीजिए 17,000 का है तो वो फिर 1700 का हो जाएगा। पीछे कुछ कंपनीज के हम नाम नहीं लेते, उन्होंने ऐसा किया भी, हाल में भी किया है। तो शेयर की प्राइस कंपनी की वैल्यूएशन पे, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए गए हैं इस पे निर्भर करता है, ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स पे निर्भर करता है और कंपनी शेयर की क्या प्राइस निकाल रही है मार्केट में उस पे भी निर्भर करता है। ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है पर कंपनी का अपना निर्णय होता है, जिसके बाद सेबी का अप्रूवल लेके आपको शेयर प्राइस, आप अपना शेयर प्राइस लाते हैं, जिसको हम बुक बिल्डिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद शेयर मार्केट के जो मार्केट के फोर्सेस हैं वो शेयर प्राइस को निर्धारित करते हैं। अब मोटा मोटा मैंने आपको जवाब दे दिया। इसको बारीकी से समझने के लिए साकेत जी, हम और आपको एक कागज पेंसिल लेके पूरा सामने बोर्ड लेके पूरा मैं आपको समझाऊं तो आपको फिर पूरा स्पष्ट हो जाएगा, पर ब्रॉडली मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलें बलरामपुर से हमारे साथ हैं रिंकी तिवारी। रिंकी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत, सवाल पूछें। जी नमस्कार सर, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ में एक्सपर्ट हो उन्हें भी मेरा नमस्कार और जो सहयोगी सर मैम कोई भी उन्हें भी मेरा नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे पैंडेमिक चल रहा है सर, पहला आया था, उसके बाद में फिर लॉकडाउन लग गया हमारे देश में, फिर दूसरा आया, फिर लगा, फिर अभी तीसरे का मतलब आसार किया जा रहा है या शंकाएं जताई जा रही कि तीसरा भी आएगा। इस साल लॉकडाउन लग रहा है, हमारे जो निवेशक हैं, जो निवेश भाई हैं, जो व्यापारी या फिर स्टेट लेवल पे कर रहे हैं या राष्ट्रीय लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी कर रहे हैं, तो सर उन्हें कितना नुकसान हुआ है इस तरह के सिचुएशन देखकर? इस पे सर अपनी क्या राय देंगे? धन्यवाद सर। रिंकी जी, आपको सुन के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई वर्ल्ड बैंक से या IMF से बोल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ये ठीक बात करी कि लॉकडाउन से निरंतर ज्यादातर सेक्टर्स को नुकसान हुआ है। कुछ सेक्टर्स फायदे में भी रहे हैं, फार्मा सेक्टर है, IT का सेक्टर है, FMCG का सेक्टर है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स रहे हैं जिनको इससे लाभ भी हुआ है। मतलब एक अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि आपको एक अवसर दिखाई देता है, कई बार मुसीबत में भी अवसर बनता है। पर हाँ, ब्रॉडली आपने जो पूछा है वो बात सही है कि लॉकडाउन जो बार बार लगता है, जब आर्थिक गतिविधि रिंकी जी रुकेगी तब बिजनेस और अर्थव्यवस्था सफर करेगी, उसको सहना पड़ेगा। तो ये तो अब आजकल तो ये बहुत आम चीज हो गई है चर्चा करना कि जब लॉकडाउन लगेगा तो उसमें उनको क्या करना चाहिए। वो मेरे ख्याल ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। यही है कि जो लोग, जैसे मान लीजिए कोई दुकानदार है और वो दुकानदार, उसकी दुकान बंद हो जाती है, 15 दिन का लॉकडाउन लगता है, वो कुछ सामान नहीं बेचता, तो हम उनको ये सलाह देते हैं कि आप
क्यों नहीं आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूं कि बिजनेसमैन के सामने इस समय सबसे आसान रास्ता यही है कि वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े, कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस करे जहां टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो, क्योंकि जहां जहां हमने देखा टेक्नोलॉजी का प्रयोग था वहां पर वर्क फ्रॉम होम चलता रहा, बाकायदा चलता रहा, कंपनी का मुनाफा, कंपनी का राजस्व भी होता रहा, बिजनेस का मुनाफा होता रहा। तो हमारी सलाह यही है कि टेक्नोलॉजी की तरफ अगर हम रुख करेंगे, जितनी जल्दी हम करेंगे, तो न केवल हम मॉडर्न जो एरा है उसके बराबर कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, बल्कि ऐसी जब मुसीबत आती है लॉकडाउन जैसी, उसमें भी हम अपने आप को संभाल पाएंगे। पर कुल मिला के आपकी बात सही है, पूरे विश्व ने सफर किया है, सारे विश्व की बड़ी से बड़ी अर्थव्यवस्था भी इससे मुसीबत में रही है। उम्मीद करते हैं रिंकी जी आप और हम प्रार्थना करें कि थर्ड वेव ना ही आए। आप दोबारा लॉकडाउन का हम नाम भी क्यों ले, आएगा जब देखा जाएगा। फिलहाल छोड़िए ना लॉकडाउन की बातें। Waiting for us is Rahul Patel from Mumbai. Rahul, thank you for your patience. Please go ahead and ask your question. Hello, Rahul. राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप, लगता है हमारा touch. Just wanted to ask you about Sharad, about the key sectors output, which saw a 1.1% month-on-month increase and 8.9% year-on-year basis. Does this reflect that we are on a road to recovery? And does it further confirm the trend visible in other high-frequency indicators, which shows that the economy may have bottomed out in the month of May? Absolutely, Rajesh. There's no doubt about it. I mean, Indian economy has got a fundamental characteristic, I would say, that it has that, potential to bounce back very quickly. The moment you open everything, the moment you unlock everything, you will find are raring to go. They dash out of their houses, they dash as the industry comes back in shape, the businesses start roaring again. The roads, the traffic. Look at the traffic in the metros, in the bigger towns today. There are traffic jams everywhere. So I think there is something called pent up we use in economy. I think this is pent up because people were stuck. It's like, you stop a water in a pipe, you put your hand on, and there's a pressure behind. The moment you remove your hand, you will find that the water gushes out of the pipes. I think it's the same situation as far as Indian economy is concerned. And the moment things got unlocked, we saw this improvement in core sector. Okay. And I think if things continue, then we are going to see even more buoyancy in the sector. आइए चले मुंबई से हमारे साथ हैं रत्नाकर जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। हाँ, हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरा सवाल है कि हर एक शेयर जो चढ़ता है नहीं तो नीचे आता है, तो वो टेक्निकल चार्ट पर ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल चार्ट से प्रभावित होता है। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो टेक्निकल चार्ट समझने के लिए क्या करना चाहिए और वो कैसे समझ सकता है, उसका कोड रहता है, ये भी मुझे मालूम है। और दूसरा सवाल है कि जो इसमें आईपीओ आ रहे हैं, हाँ जी, तो ये आईपीओ में सभी में समझो एक लॉट के लिए जब ये हम अप्लाई करते हैं तो उचित रहेगा क्या? और जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जो रहता है हर एक आईपीओ का, तो उस पर हम कितना भरोसा रख सकते? देखिए रत्नाकर जी, आपका पहला सवाल के जो शेयर मार्केट में टेक्निकल चार्ट, देखिए टेक्निकल एनालिसिस होता है आपको छोटी अवधि के लिए, छोटे शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होता है। और टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे शेयर्स नहीं चढ़ता है। शेयर्स की जो मूवमेंट है वो हम चार्ट्स में उसको प्लॉट करते हैं, उससे एक पैटर्न बनता है। अगर मैं आपको सरल शब्दों में समझाऊं, उस पैटर्न को हम स्टडी करते हैं रत्नाकर जी। हम जब उसको स्टडी करते हैं तो वो हमें एक डिजाइन दिखाता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, इन्वर्टेड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर पैटर्न और बहुत तरीके के बार्स इसमें बनते हैं। मैं नाम लेता जाऊं तो शायद बाकी का कार्यक्रम हम इसी पे डिस्कस करें, पर ऐसा नहीं करेंगे। तो वो पैटर्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में ये वर्ड यूज कर रहा हूँ रत्नाकर जी, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार टेक्निकल एनालिसिस में बने हुए चार्ट गलत भी होते हैं। इसलिए गलत होते हैं क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी होता है, खबरें भी आती रहती हैं और कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं। कई बार कोई ऐसी घटना भी घट जाती है जहां आपके सारे का सारा टेक्निकल एनालिसिस फेल भी हो जाता है। तो शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शन के लिए टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखा जाए बहुत अच्छा है। पर मैं आपको यह सलाह दूंगा रत्नाकर जी, आप बहुत जागरूक श्रोता भी हैं और निवेशक भी लगते हैं, आपके प्रश्नों से ऐसा आभास होता है कि आप खाली टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे शेयर्स में निवेश करने का निर्णय ना लिया करें। आप साथ में फंडामेंटल एनालिसिस भी देखा करें
और खबरों के प्रति भी जो आपको मार्केट मंत्रा रोज के रोज आर्थिक जगत से खबरें सुनाता है, जरा उनके भी आप सुनते रहा करिए। इन सब चीजों को मिला के शेयर की प्राइस का मूवमेंट होता है। दूसरा आपने पूछा आईपीओ का, तो देखिए आईपीओ अप्लाई करने के लिए सिंगल लॉट करते हैं आप, डबल लॉट करते हैं, ये तो आपकी अपनी मर्जी है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है। कंपनी का अलॉटमेंट जितना बार वो ओवर सब्सक्राइब होता है उसके आधार पर प्रो रैटा वो किया जाता है। दूसरा आपने पूछा कि इसकी प्राइस ग्रे मार्केट में, देखिए ग्रे मार्केट के बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करते क्योंकि उसका नाम ही ग्रे मार्केट है, वो नाम ही अपने आप में जवाब दे देता है। मैं समझता हूं कि ग्रे मार्केट के प्रीमियम पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कभी भी गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, पर गलत भी हो सकता है। तो हम यहाँ ग्रे मार्केट की हम एक प्रसार भारती के प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी ऐसी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे जो कि किसी काले या ग्रे कलर के मैटर को आगे बढ़ाता हो। तो आप ग्रे मार्केट से तो दूर रहिए, आप अपनी रिसर्च आईपीओ पे करिए। कंपनी के सारे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स मेंशन होती है, आप रिसर्च करेंगे, आपको जो सवाल है आपके सब जवाब मिलेगा और उसके बेसिस पे आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। Okay. Joining us from Delhi is Renuka. Renuka, we welcome you. Hello. Hello. Renuka, go ahead and ask your question, please. यस सर, मेरा सर सवाल ये है कि मैंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था जिसका अभी तक मेरा रिफंड नहीं आया है, तो उस रिफंड के लिए मुझे क्या करना होगा सर? उसके लिए कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करना होगा मुझे? रेणुका देखिए, अभी आज की ही खबर आई है कि आयकर विभाग ने अप्रैल से लेके और करीब 43,000 करोड़ रुपए के उससे भी ज्यादा के रिफंड्स प्रोसेस हो चुके हैं क्योंकि अब सब डिजिटल प्रणाली है, बहुत फटाफट काम होता है। पहले रिफंड के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था, अब तो चंद महीनों में, कई बार चंद हफ्तों में और कई बार चंद दिनों में रिफंड आ जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है रेणुका कि आपका रिफंड प्रोसेस में होगा, कुछ दिनों में हो सकता है आपको मिल जाए और आएगा तो हमें खुशखबरी भी दीजिएगा कि आपका रिफंड आ गया। पर अगर नहीं आया है और बहुत दिन तक आपको लग रहा है कि आपको इंतजार करनी पड़ी है तो एक रिफंड री इशू रिक्वेस्ट होती है। आप इनकम टैक्स पे पोर्टल पे जाएं, अपना लॉगिन पासवर्ड डालें, तो एक रिफंड री इशू रिक्वेस्ट होती है, आप वो रिक्वेस्ट डालें, उसके बाद भी नहीं होता है तो एक ई निवारण की सुविधा अब इनकम टैक्स पे दी गई है, आप उस ई निवारण में डालें। और अब इनकम टैक्स रिफंड की जब शिकायतें होती थी, मुझे लग रहा है वो दिन धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं, आपको रिफंड जल्दी आएगा, कुछ हफ्तों में हो सकता है, कुछ दिनों में ही आ जाए। आप ये करके देखें, अगर आपको फिर भी ये करना चाहते हैं आप ये करें और रिफंड आए तो हमें एक बार खुशखबरी जरूर दीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी। आइए चलें सोलापुर से हमारे साथ हैं मुकुंद जी, स्वागत आपका, सवाल पूछें। जी नमस्ते, कोहली सर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर मेरे सवाल ऐसा है कि जो मैं छोटा दुकानदार हूँ, मेरा जो ई कंपनीज होते हैं जो हमारे छोटे से दुकान पर उनका असर होता है, हम होम अप्लायंसेस सेल करते हैं। हाँ जी। तो पैंडेमिक के बाद उसका क्या असर हो सकता है, मतलब उसके ज्यादा प्रभाव हो सकता है क्या गांव दूर दराज में? दूसरा सवाल ऐसा है कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी लाई क्या हम लोगों को, मतलब जो छोटे दुकानदार है? और सॉरी मतलब तीसरा सवाल ऐसा है कि मुकुंद जी 2 ही सवाल रखे और लोग भी क्यू में हैं। पहले तो आपसे भी ज्यादा प्यार भरा नमस्कार मेरा आपको। देखिए ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया और ये मैं जितने भी देश भर के रिटेलर्स हैं मैं उन सबको इस बात के लिए सलाह देता हूं कि आप एक दुकान चला रहे हैं, सालों से चला रहे हैं, पुश्तैनी दुकान है, मैं सबको सलाह देता हूं कि आपकी जो नई जनरेशन आ रही है आगे, या आप ही अपने आप को आईटी के प्रति थोड़ा जागरूक करें और कोशिश करें कि आप भी ऑनलाइन आए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है ना मुकुंद जी, वो बहुत कंप्यूटर savvy है। वो आपने देखा होगा मोबाइल से ऐसे चिपके रहते हैं, इतने कपड़े भी शायद उनके शरीर पर नहीं चिपकते जितने मोबाइल चिपके रहते हैं। तो जो आने वाली जनरेशन है वो धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ जा रही है। हालांकि सरकार, आपका दूसरा सवाल भी मैं इसी में आ जाएगा, सरकार ने जो ऑनलाइन रिटेलर्स है जब वो गलत तरीके से ग्राहकों को अपनी तरफ रुझाने की कोशिश करते हैं तो सरकार उसके बारे में समय समय पर नियम लाती रहती है। हम यहाँ नाम नहीं लेते कंपनियों का, अभी हाल में ही सरकार ने इस बात का जिक्र भी किया था, रिटेलर एसोसिएशन ने शिकायत भी करी थी, मंत्रालय के पास भी शिकायत गई थी, तो सरकार उस पर रेगुलेट करती है। पर फिर भी जो टेक्नोलॉजी जिस तरीके से हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर हावी हो रही है, तो मुझे लगता है हमें बहाव के साथ चलना चाहिए। हम बहाव के खिलाफ चलेंगे तो आप उससे लड़ते रहेंगे। तो आप अपने जो आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो भी काम है, मैं आपको सलाह दूंगा, आप एक पोर्टल बनाइए, उसको आप ऑनलाइन सारे गुड्स को रखिए, उस पोर्टल को आप प्रमोट करिए, आप उसको देखिए कि आपका सर्च इंजिन में वो जल्दी जल्दी दिखाई दे, आप देखेंगे कि आपका सामान ऑनलाइन बिकने लग जाएगा
और आप उन बड़े रिटेलर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो सकेंगे। तो बजाय इसके कि हम शिकायत करें और हम करें, क्योंकि आप उस बहाव को रोक पाना, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत कठिन होगा। तो मेरी आपको दिल से ये सलाह है कि आप भी ऑनलाइन आ जाइए और उनको टक्कर दीजिए बाकायदा, बजाय इसके कि आप परेशान। आइए चलें ठाणे से हैं सुनील हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आपका सुनील जी, सवाल पूछिए। My question is, now inflation is increasing continuously. Yeah. So whether and naturally the consumption of FMCG products will decrease. So how the economy will revive? Yes, Mr. Sunil, that is, I would say you have hit the nail on the head. Yes, if the prices keep rising, and I think the corridors of the government are also very worried about this, especially the inflation has been fueled by the fuel prices, I would say. So that has been the main cause of inflation. Apart from that, supply disruptions, erratic monsoons in the beginning, in the beginning part of July and so on. So there are many reasons for inflation. So I think, yes, if the prices keep rising, it becomes difficult for people to go and buy. And let me give you some information. 66 to 65% of our economy, of our GDP, is comprised of consumption. I mean, it is consumption. We are a consumption-driven economy. Like China is a manufacturing or export-driven economy, we are a consumption-driven economy. Yes, you're right. The prices have to cool down, and I think the government is desperately working on cooling down the prices. I'll give you some of the measures which government is taking. Hoarding is being checked. Supply disruptions with the lockdown opening are being removed. There are attempts to see how discussions are going on, how these fuel prices can be controlled, because 85% of our fuel requirements are imported, So I think steps and measures are being taken. But principally, I agree with you that if the prices go up, consumption goes down. If consumption goes down, economy will take longer to revive. I can't agree more to what you have said, Sunilji. Let's take our last headline story. U.S. stocks dropped yesterday to pull further from record highs as an underwhelming earnings report from Amazon.com Inc. dampened the market mood. On the other hand, the dollar bounced from its lows but still suffered its worst week in nearly 2 months. The Dow Jones Industrial Average fell 0.4%, the S&P 500 declined 0.5%, and the Nasdaq Composite Index plunged 0.7%. आमंत्रित करें चेन्नई से ए राजगोपाल जी को। बहुत बहुत स्वागत आपका राजगोपाल जी, सवाल पूछें। हेलो सर, आई एम राजगोपाल calling from Chennai. जी, we are very short on time, Mr. Gopal. If you could please. Okay, sir. I will restrict my question, sir. Yes, sir. I want your guidance as to what is the percentage on which MRP of your product is fixed, because I feel the customers are taken for a ride or they are not being given a fair deal in terms of the MRP. For example, the cost of production of one product is 100 rupees. What is the percentage on which the MRP? We've got your question. We've got your question, Mr. Rajagopal, because so I'll give a very short answer. There is no standard percentage. MRP differs from product to product. I think next time you can call and I'll give you a very detailed answer on how MRP is decided. Yes, if they are taking for a ride, you are free to go and appeal or file a complaint to the consumer forum. They are very responsive and you will get a response. We'll talk in more detail next time. I'll wait for your question, Mr. Rajagopal from Chennai. I look forward to your question and we'll have a detailed discussion. Thank you. कुछ और खबरें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के सेवा निर्यात में जबरदस्त वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि 20 वर्ष की अवधि में सेवा क्षेत्र के निर्यात 12 गुना बढ़ गए हैं। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपका शरद जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको देना चाहेंगे। Thank you, Sharad, for being with us. Thank you so much. It was absolutely a pleasure. Thank you. And before we close the headlines once again, domestic stocks fall more than 0.5% during the week ended yesterday. Sensex closes above 52,600, Nifty finishes below 15,800 level. And the US stocks slip amid concern about lower than expected results of leading companies. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.